ذرا سوچیں، ایک بادشاہ جس کے سامنے نہ صرف انسان جھکتے ہوں بلکہ ہوا بھی اس کی غلام ہو، جنات بھی اس کے حکم پر سر تسلیم خم کریں اور پرندے بھی اس کی فوج میں شامل ہوں۔ ایک ایسی سلطنت جس کی مثال نہ پہلے کبھی تھی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اللہ کے اس نبی کی جنہیں ایسی بادشاہی دی گئی جو تاریخ انسانی میں بے مثال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی اور بادشاہ تھے، جن کو اللہ نے زبور عطا کی تھی اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ کی جگہ لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا کہ سلیمان نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس انوکھی نعمت کی جو شاید سب سے حیران کن ہے، جنات پر قبضہ۔ جنات وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جو انسانی آگ سے اوجھل ہیں، جن کی طاقت انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جنات اپنی مرضی کے مالک تھے، آزاد تھے۔ لیکن جب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی تو یہ طاقتور جنات بھی ان کے تابع ہو گئے۔ قرآن مجید میں سورہ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا، اور جنوں میں سے جو غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، ہم ان کے نگہبان تھے۔ یہ جنات کیا کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے؟ قرآن نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ یہ جنات ان کے لیے محل بناتے، مجسمے تراشتے، بڑے بڑے حوض اور دیگ بناتے جو پتھر سے کندہ ہوتے تھے۔ سورہ سبا میں اللہ نے فرمایا، یہ جنات اس کے لیے جو چاہتے بناتے، بلند محل، تصویریں، بڑے حوض جیسی دیگیں اور جڑی ہوئی قردار دیگیں۔ غور کریں، یہ وہ وقت تھا جب انسانوں کے پاس نہ جدید مشینیں تھیں نہ ٹیکنالوجی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسی قوت تھی جو آج کی مشینوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ لیکن یہ قبضہ کیسے ہوا؟ کیا جنات خود بخود آ کر ان کی خدمت میں لگ گئے؟ نہیں، یہ اللہ کا خاص انتظام تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص انگوٹھی دی تھی جس پر بسم اللہ کو لکھا تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم تھا۔ جب وہ یہ انگوٹھی پہنتے تو ہوا جنات اور تمام مخلوقات ان کے تابع ہو جاتی۔ یہ انگوٹھی ان کی سلطنت کی علامت بھی تھی اور طاقت کا راز بھی۔ لیکن اس انگوٹھی کی ایک اور کہانی بھی ہے جو ہم آگے بیان کریں گے۔ جنات میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ سرکش۔ نیک جنات جنہیں مومن جنات کہتے ہیں وہ خوشی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے، لیکن سرکش اور شیطانی جنات کو قابو میں رکھنا ضروری تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا کہ وہ سرکش جنات کو زنجیروں میں جکڑیں۔ قرآن میں ہے کہ اور شیطانوں میں سے جو غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان سب کے نگران تھے۔ یعنی جو جن بھاگنا چاہتا وہ بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ کی نگرانی تھی۔ اب آتے ہیں ایک ایسے واقعے کی طرف جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے اور یہ واقعہ مفسرین نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی یا کسی نے لے لی۔ ایک شیطانی جن جس کا نام سخر تھا، اس نے وہ انگوٹھی حاصل کر لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں تخت پر بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا کیونکہ انگوٹھی کے بغیر ان کی سلطنت کی علامت غائب ہو گئی۔
थी। वो भेस बदल कर घूमते रहे, लोगों को समझाते रहे कि मैं सुलेमान हूं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। ये आजमाइश क्यों आई? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। कुरान में सूरा सुआद में अल्लाह ने फरमाया, क्वोट, और हमने सुलेमान को आजमाया और उनके तख्त पर एक जसद डाल दिया, फिर उन्होंने रुजू किया। क्वोट, इस आजमाइश का मकसद ये था कि हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को याद दिलाया जाए कि तमाम ताकत अल्लाह की दी हुई है, उनकी अपनी नहीं। जब भी कोई बंदा नेमतों में मगन होकर अल्लाह से गाफिल होने लगे तो अल्लाह आजमाइश के जरिए वापस मिला लेता है। कुछ दिन बाद हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम समंदर के किनारे गए और वहां मछलियों को कुछ खाना डाला। इत्तेफाक से एक मछली के पेट में से वही अंगूठी निकली जो खोई थी। जैसे ही अंगूठी के हाथ में आई, तमाम जिन्नात हुआ और मखलूक़ात फिर से उनके ताबे हो गईं और शैतानी जिन फरार हो गया। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने फौरी तौर पर अल्लाह के सामने सजदा शुक्र अदा किया और अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगी। यही उनकी अज़मत थी, नेमत मिलने पर शुक्र, आजमाइश में सब्र। अब बात करते हैं जिन्नात की एक और हैरान कुन खिदमत की। जब मलिका सबा बल्कीस का तख्त चंद लम्हों में हजारों मील दूर से लाया गया। ये वाक़या कुरान मजीद ने सूरा निमल में बहुत तफसील से बयान किया है। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया, क्वोट, कौन है जो मलिका का तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो मेरे पास आएं? क्वोट, एक ताकतवर जिन ने कहा, क्वोट, मैं इसे ला सकता हूं इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठी, और मैं इस पर कुदरत रखता हूं और अमानतदार हूं। क्वोट, लेकिन फिर एक और शख्स आगे आया जिसके पास किताब का इल्म था। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आसिफ बन बरखया थे, जो हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के वजीर थे और उन्हें इस्म आज़म मालूम था। उन्होंने कहा, क्वोट, मैं इसे पलक झपकने से पहले ला सकता हूं। क्वोट, और सच में ऐसा ही हुआ। मलिका बल्कीस का तख्त जो यमन में था, वो पलक झपकने से पहले बैत अल मक़दस में हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के सामने हाजिर था। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, क्वोट, ये मेरे रब का फजल है ताका वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री को। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? ये कि इल्म की ताकत जिस्मानी ताकत से बढ़कर होती है। जिन ने कहा कि मैं उठने से पहले लाऊंगा, यानी घंटों में, लेकिन जिसके पास इल्म था इसने पलक झपकने में कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की सल्तनत में जिन्नात की जिस्मानी ताकत भी थी, लेकिन अल्लाह के दिए हुए इल्म का कोई मुकाबला नहीं। यही वजह है कि कुरान में इल्म का जिक्र बार बार आता है, और अल्लाह ने खुद फरमाया, क्वोट, जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते, क्या वो बराबर हो सकते हैं? वो हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की सल्तनत में जिन्नात के काम बहुत मुतनव्वे थे। बाज जिन्नात समंदर में गौता लगाकर कीमती मोती और जवाहरात निकालते थे। बाज पहाड़ों को काट कर पत्थर निकालते और तमीरात करते थे। बाज जिन्नात आग पर काम करते, लोहे को पिघलाकर असलहा और ज़रा बख्तर बनाते थे। हैकल सुलेमानी जो बैत अल मक़दस में तामीर हुई, इसे भी उन्हीं जिन्नात ने बनाया। इस इबादत गाह की अज़मत का अंदाज़ा आज तक के आसार से लगाया जा सकता है। हैकल सुलेमानी की तामीर के दौरान एक और हैरान कुन वाक़या हुआ। हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने हुक्म दिया था कि तामीर के दौरान कोई लोहे की आवाज न आए, यानी पत्थर पहले काटे जाते, फिर लाए जाते और बगैर किसी आवाज के फुट कर दिए जाते। जिन्नात ने ऐसी महारत से काम किया कि एक भारी पत्थर भी बगैर आवाज के अपनी जगह पर फुट बैठा। ये सल्तनत की वो शान थी जो आज के इंजीनियर भी सोचकर हैरान हो जाते हैं कि वो जमाना जब न क्रेन थी न मशीनें, इस वक्त ऐसी इमारतें कैसे
बनाई गईं। अब एक और पहलू की बात करते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात और जिन्नात को इसका इल्म कब हुआ। ये वाक़या बहुत सबक आमोज है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, वो एक कमरे में अपनी लाठी का सहारा लेकर खड़े थे और वहीं उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जिन्नात को खबर नहीं हुई। वो समझते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा है और खड़े हैं और उनका हुक्म चल रहा है। जिन्नात बराबर मेहनत करते रहे। कुरान मजीद में सूरा सबा में अल्लाह ने ये वाक़या बयान किया है, फिर जब हमने उन पर मौत का फैसला किया तो उन्हें उनकी मौत से किसी ने आगाह नहीं किया सिवाय जमीन के कीड़े के जो उनकी लाठी को खाता रहा। फिर जब वो गिर पड़े तो जिन्नों पर जाहिर हो गया कि अगर वो गैब जानते तो इस जिल्लत आमेज अजाब में न रहते। यानी एक छोटा सा कीड़ा जो लाठी खाता रहा, इसने जिन्नात की इस गलत फहमी को खत्म कर दिया कि वो सब कुछ जानते हैं। ये वाक़या इसलिए कुरान में बयान किया गया कि जिन्नात का एक बड़ा दावा ये था कि हमें गैब का इल्म है। वो लोगों को बताते थे कि हम आसमानों की खबरें जानते हैं, हमें छपी हुई बातों का इल्म है। लेकिन अल्लाह ने इस वाक़ये के जरिए साबित कर दिया कि जिन्नात गैब नहीं जानते। वो भी अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह जो चाहे इनसे छुपा सकता है। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है, ये पैगाम कुरान बार बार देता है। अब सवाल ये उठता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर कब्जा क्यों दिया गया? क्या ये महज दुनियावी ताकत थी? नहीं, अल्लाह का हर काम हिकमत से भरा होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी सल्तनत अल्लाह की इबादत और उसके दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल की। हैकल सुलेमानी एक इबादतगाह थी। मलिका बल्कीस को जब उनका तख्त दिखाया गया तो वो इस्लाम ले आए। एक पूरी कौम तौहीद की तरफ आ गई। जिन्नात की ताकत को उन्होंने अपनी अय्याशी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के घर की तामीर के लिए इस्तेमाल किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक और खूबी जो उन्हें अजीम बनाती है वो उनका इंकिसार था। जब भी कोई बड़ी नेमत मिलती वो फौरी तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब तख्त बल्कीस पलक झपकने में आया, उन्होंने कहा, ये मेरे रब का फजल है। जब हुआ उनके ताबे हुई, उन्होंने कहा, ये अल्लाह की रहमत है। यही वो सोच है जो एक बादशाह को नबी बनाती है। ताकत मिल जाना आसान है, लेकिन ताकत मिलने के बावजूद अल्लाह को ना भूलना ये सबसे मुश्किल काम है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये काम बखूबी अंजाम दिया। परिंदों पर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुदरत थी। वो परिंदों की बोली समझते थे। कुरान में है कि उन्होंने फरमाया, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज से नवाजा गया है। उनकी फौज में जिन्नात भी थे, इंसान भी थे और परिंदे भी थे। हुदहुद परिंदा जो उनका कासिद भी था, इसी ने मलिका बल्कीस और उसकी कौम के बारे में इत्तला दी थी कि वो लोग सूरज की पूजा करते हैं और अल्लाह को नहीं मानते। जिन्नात की दुनिया के हवाले से एक और बात बयान करना जरूरी है। जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे करने का मतलब ये नहीं था कि जिन्नात खत्म हो गए या उनकी आजादी सल्ब हो गई। जिन्नात आज भी मौजूद हैं, वो आज भी अपनी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने एक खास वक्त के लिए एक खास नबी को उन पर इख्तियार दिया था। ये इख्तियार ना पहले किसी को मिला था और ना बाद में किसी को मिलेगा। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुसूसियत थी। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जादू का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से है। कुरान ने इस का भी जवाब दिया है। सूरा बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि ये शैतानों ने जादू ईजाद किया और लोगों को सिखाया। फिर कहा,
सुलेमान ने कुफर नहीं किया, अलबत्ता शैतानों ने कुफर किया। कोट यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नात पर कब्जा जादू नहीं था बल्कि अल्लाह का अतिया था, और जादू जो लोग करते हैं वो शैतानी काम है जिससे अल्लाह ने मना किया है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं थी, हुआ उनके ताबे थी। वो हुआ पर सवार रहकर सफर करते थे। कुरान ने कहा कोट और हमने सुलेमान के लिए हुआ को ताबे कर दिया जो सुबह को 1 महीने की मुसाफत और शाम को 1 महीने की मुसाफत तय करती थी। कोट यानी जो सफर पैदल महीनों में होता वो 1 दिन में होता था। ये सल्तनत की वसअत का अंदाजा लगाइए, एक तरफ जिन्नात की ताकत, दूसरी तरफ हुआ की रफ्तार। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक यह है कि ताकत अल्लाह की है और वो जिसे चाहे देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने मांगा कोट ए रब मुझे ऐसी बादशाही दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। कोट और अल्लाह ने दिया, लेकिन अल्लाह ने ये भी देखा कि क्या ये बंदा इस नेमत का अहल है, क्या वो ताकत मिलने के बाद अल्लाह को याद रखेगा, आप भूल जाएगा। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि वो अहल है। आज जब हम अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल आती देखते हैं, जब लगता है कि कोई ताकत हमारे साथ नहीं, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। वो नबी जिसके ताबे जिन्नात थे, जिसकी फौज में परिंदे थे, जिस पर हुआ काबू में थी, वो भी आजमाइश से गुजरा। अंगूठी खोई, तख्त छन गया, लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन अल्लाह ने सब वापस कर दिया और उससे भी बढ़ कर दिया। यही अल्लाह का तरीका है, आजमाइश के बाद राहत, इब्तिला के बाद नुसरत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि दुआ की ताकत कितनी अजीम है। उन्होंने मांगा और मिला, ऐसी सल्तनत जो दुनिया में किसी को नहीं मिली, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया कि जो मिले इस पर अकरो मत, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आसिफ बिन बरखया के वाक़ये में मलिका बल्कीस का तख्त आने पर पहली बात जो कि वो शुक्र था। कोट ये मेरे रब का फजल है। कोट ये ईमान की बुलंदी है। आखिर में एक अहम बात, जिन्नात का वजूद इस्लाम में एक हकीकत है। कुरान ने न सिर्फ जिन्नात का जिक्र किया बल्कि पूरी एक सूरा कोट सूरा अल जिन कोट नाजिल फरमाई। जिन्नात ने कुरान सुना और ईमान लाए। वो आपस में कहने लगे कोट हमने एक अजीब कुरान सुना जो सीधी राह दिखाता है, हम इस पर ईमान लाए। कोट यानी जिन्नात में भी मोमिन हैं और काफिर हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह, और क़यामत के दिन दोनों का हिसाब होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान खत्म होती है एक सादा सी तस्वीर से। एक नबी अपनी लाठी थामे खड़ा है और उसकी रूह परवाज कर चुकी है। जिन्नात काम करते रहे क्योंकि उन्हें खबर नहीं थी। आखिरकार एक छोटे से कीड़े ने लाठी को खाकर गिरा दिया और जिन्नात को एहसास हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ने यह वाक़या इसलिए कुरान में जिक्र किया ताकि हमें बताए कोई भी मखलूक गैब नहीं जानती, कोई भी ताकत अबदी नहीं, सिर्फ अल्लाह ही बाकी है। सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ जानता है। सुभान अल्लाह, ये है वो सल्तनत जो अल्लाह ने अपने नेक बंदे को अता की। ना ये सल्तनत जादू थी, ना शोबदाबाजी, ये अल्लाह का अतिया था, अल्लाह की रहमत थी और एक नबी की दुआ का समर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी कहानी कुरान में महफूज है, इसलिए कि आने वाली नस्लें पढ़ें, सोचें और समझें कि अल्लाह की तरफ से आने वाली ताकत कैसी होती है, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा कैसा होता है और एक सच्चा नबी अपनी नेमतों को किस तरह इस्तेमाल करता है। अल्लाह हमें भी ऐसी सोच और ऐसा ईमान अता फरमाए। आमीन।